Good morning everyone. In today's video, we are going to discuss chapter number 4 fractions of your maths book. आप सभी ने different types of numbers पहले देखे हुए हैं like number 1, 2, 3. So if I am talking about कि अगर मुझे अपने friend को किसी को 2 chocolates देनी है या 1 chocolate देनी है तो you will be having a clear idea in your mind कि 1 और 2 का मीनिंग क्या है, 1 नंबर की वैल्यू क्या है, 2 नंबर की वैल्यू क्या है. So whenever suppose I want to share my chocolate with my friend but I do not want to give the whole chocolate to my friend. Instead of that what I did, मैंने उसका पार्ट किए 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया और 1 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया. So just try to understand, वहाँ पर मैंने अपनी 1 चॉकलेट अपने फ्रेंड को ना दी कि उसका एक पार्ट अपने फ्रेंड को दिया. So if I want to represent that part in a form of number, how can I write? उसको किस तरह से मैं लिख सकती हूँ? So that can be written with the help of fraction numbers. How? Suppose I have a chocolate over here and what I did, I divided this in 2 equal parts. Okay? मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, 2 equal parts में divide किया है. Now one of its part, the one which I have shaded over here, this part I gave it to my friend. जब मैं 1 chocolate की बात कर रही हूँ कि if I am giving 1 chocolate to my friend, तो आपके माइंड में clear idea है 1 means what, 1 number क्या है, इसको कैसे लिखेंगे. But if I am talking about some part of it, not the whole chocolate, only some part of it, then how to write this number, this part in form of number. So there we use these fraction numbers. How? Like here I have divided this in 2 parts, okay, and one of the part I am giving it to my friend. So this part can be written in this form, 1 by 2. Such numbers which are written in this form like 1 by 2, 3 by 4, 7 by 8, all these numbers are called fraction numbers. All these numbers are fraction numbers. यहाँ पर क्या है? These numbers are part of whole. These are not whole number itself. ये अपने आप में पूरे number नहीं है, but they are part of a whole. So what fraction means? If I am talking about fraction number is a part of a whole. Like in this example, इस example में बताया पूरा एक चॉकलेट ना देकर के चॉकलेट का कुछ पार्ट दिया जा रहा है. तो उस पार्ट को नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस. और ऐसे ही ये जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, these are called fraction numbers. So fraction numbers are part of a whole. Clear? Another thing is the number which we write over here above this horizontal line. इस horizontal line के ऊपर जो नंबर लिख रहे हैं, these numbers are called numerator. These numbers are called numerator. And the number which we write below the horizontal line are called denominator. Are called denominator. Clear? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? पहली चीज, what are fractions? Fractions क्या होते हैं? Fractions are the numbers which are part of a whole. ऐसे numbers जो पूरे ना होकर के whole का कुछ part होते हैं, वो numbers क्या हैं? Fraction numbers. And the second thing which we have discussed, इस फॉर्म में जब हम numbers को लिखते हैं, तो the number which we write above the horizontal line are called numerator, and the number which we write below the horizontal line are called denominator. So these 2 points we have discussed. Let us now move forward. Okay? अब हम आगे बढ़ते हैं. Now let us discuss types of fractions. हमारे पास ये जो numbers हम लिखते हैं, we will be having various types of it. How? Let us see types of fractions. Fractions की क्या टाइप है वो हम यहाँ पर देखते हैं. If I want to bifurcate it, so I'll be having the very first type is proper fraction. Okay? Proper fraction. I'm just writing here proper fraction. Okay? Just proper fraction क्या होंगे? आप जब देखेंगे आपके पास बहुत सारे numbers. Whenever you will be going through this chapter, जब आप इस chapter में देखेंगे, आपको कुछ ऐसे numbers मिलेंगे like 4/8, 3/7, 6/9. So in all these 3 examples which I have written over here, you are observing that the numerator is smaller than the denominator. In हर एग्जाम्पल में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर
छोटा है. Yes. So such kind of fractions are called proper fractions. These kind of fractions are called proper fraction. Now let us move on to its second type. अगर हम इसका second type देख रहे हैं, then it will be improper fraction. Improper fraction. Okay. So now what improper fraction are? इसी का just opposite हो गया. Word से हमें clear हो रहा है proper improper opposite है. So if the numerator is greater than the denominator, अगर numerator बड़ा है denominator से, in that case that fraction will be called as improper fraction. कैसे? जैसे example में 11/7, 13/9. So these kinds of fraction will be called improper. Improper fraction क्यों है? यहाँ पर जो numerator है, numerator वाला part है, वो denominator से क्या है? बड़ा है. आप एक चीज और देखिएगा, जब हम फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखते हैं, लाइक मैंने अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये बार है, ओके, रेक्टेंगुलर पार्ट, और मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो अगर मुझे शेडेड पार्ट का को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3. तो 3 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में. और जो पार्ट्स हम ले रहे हैं, जो हम कंसीडर कर रहे हैं, वो आएगा न्यूमरेटर में. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम फ्रैक्शंस लिखते हैं, फर्स्ट थिंग हम उसे इक्वल पार्ट्स में, जो भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो जितने पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है, द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स विल बी रिटन इन द डिनोमिनेटर, एंड द पार्ट्स व्हिच वी आर कंसीडरिंग दैट विल बी रिटन इन द न्यूमरेटर. ओके. सो जस्ट लाइक हियर, जो 2 पार्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, इट विल बी रिटन इन न्यूमरेटर, एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स विल बी रिटन इन द डिनोमिनेटर. Okay, now let us come back to our main topic which we were discussing, that is types of fractions. Okay, now let us move on to the next type. So the next type is like fractions. Okay, now what like fraction means? जैसे हम बात करते हो कि you are looking like, जैसे किसी की तरह हम दिखाई दे रहे हैं, तो जब हम like की बात कर रहे हैं, वहां पर भी वो fractions क्या होंगे? एक दूसरे की तरह दिखाई देंगे. पर क्या पार्ट दिखाई देगा? बिकॉज फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस में दे विल बी हैविंग सेम डिनोमिनेटर. दे विल बी हैविंग सेम डिनोमिनेटर. क्या होगा उनका डिनोमिनेटर? सेम होगा. फॉर एग्जांपल 1/4, 2/4, 3/4. All these are like fractions. Like क्यों है? Because all their denominators are same. उनके denominators क्या है? Same है. So whenever we'll be observing such kind of fractions whose denominators are same, they will be called as like fractions. Okay? Now let us move on to next type. That is unlike fraction. Unlike fractions. So it's pretty much clear from its name itself. ये like है, unlike है, इसका just क्या होगा? Opposite होगा. So whenever the denominators are different denominators, whenever the fractions are having different denominators, they will be called as unlike fractions. For example, 3/7, 11/13, 15, 1/65. All these are unlike fractions because their denominators are different. Okay? तो यहाँ पे जब भी denominator different होगा तो वो unlike होंगे, same होगा तो like होंगे. The next kind of fraction that will be equivalent fractions. Equivalent fractions. Let us now try to understand what equivalent fractions are. Okay, so we have discussed like, unlike, proper, improper. Now we are moving to discuss about equivalent fractions. आप इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे. Here can see मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है and I have divided this circle in 2 equal parts. Clear? और मैं इसमें से एक पार्ट को कंसीडर कर रही हूँ. So if I want to write it in fraction form, कैसे लिखूंगी? 1/2. यही भी होगा. Okay. Now see. If I am taking a circle of same size, मैंने same size का एक और circle draw किया है, and now I have divided this circle in 4 equal parts. How many parts? 4 equal parts.
So here I am considering these two parts. So it means it is 2 by 4. Can you see something special over here? क्या आप देख रहे हैं? While I am writing 1/2, in that case also half part of this circle is shaded. When I am writing 2/4, in that case also half part of the circle is shaded. What does it mean? It means though these two fraction numbers are looking different from each other, but actual they are same. ये अलग-अलग हमें नजर आ रहे हैं, but they are actually same. They are representing the same part of the whole. Okay, so what equivalent fractions are? Equivalent fractions are the fractions which represent the same part of a whole. जब भी ऐसे fractions हो जो हमें दिखाई अलग-अलग दे रहे हैं, but they are actually representing the same part of a whole, then they are called equivalent fractions. So equivalent fraction, they represent same part of a whole. So whenever we talk about equivalent fraction, they always represent same part of a whole. Okay? Now let us move on to the next kind of fraction, that is mixed fraction. Okay? Mixed fraction. So if we are talking about mixed fraction, what happens with mix? इसका नेम से क्लियर हो रहा है, मिक्स है, मतलब दो चीजें इसके साथ क्या है, एक साथ आ रही हैं. कैसे आ रही हैं? जैसे इन एग्जांपल्स को देखिए, 4 1/3, 2 7/9. ये देख रहे हैं आप. अब आप इनमें ऑब्जर्व करिए, व्हाइल आई एम राइटिंग 4 1/3, तो 4 इज व्हाट? इट्स अ होल नंबर. 1/3 इज व्हाट? इट्स अ फ्रैक्शन नंबर. सिमिलरली 2 इज व्हाट? अ फ्रैक्शन होल नंबर. 7/9 इज अ फ्रैक्शन नंबर. So, जब ऐसे हमारे पास नंबर्स होते हैं जिसमें होल नंबर भी है, फ्रैक्शन नंबर भी, दोनों मिक्स हो चुके हैं, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड मिक्स्ड fractions. These are called mixed fraction. It contains both whole and part. whole number भी है और part भी है. So अभी जो हमने डिस्कस किया है, अभी हमने क्या डिस्कस किया है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. Proper fraction, numerator is less than denominator. Improper fraction, numerator greater than the denominator. Like fractions when they have same denominators. Unlike fractions when they have different denominators. Equivalent fractions which represent the same part of a whole, and mixed fraction when they have a whole number and a fraction number with them. So फ्रैक्शन की हमने डेफिनेशन डिस्कस की है. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. ऊपर लिखे जाने वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे लिखे जाने वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. And the types of fractions we have discussed so far. Let us now see some of the important questions which are given in your book. Okay? अब हम कुछ important questions जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे. How to perform और how to solve those questions. Okay, so let us discuss page number 33 of your maths book. Page number 33 of your maths book. Okay. So here question number 2. Question number 2. What question number 2 is? Write two equivalent fractions for each of the following. क्या करना है हमें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं और हमें नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है. जैसे मैं आपसे यहाँ पे डी पार्ट ले रही हूँ. ओके, डी पार्ट इज 5/6. 5/6. मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. आपको ध्यान है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो सेम पार्ट ऑफ होल को रिप्रेजेंट करते हैं. अब मुझे इसके नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. बहुत इजी है. हाउ टू राइट इट? 5/6. आप क्या करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2/2 से मल्टीप्लाई करिए. मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. 5 2s are 10, 6 2s are 12. ओके, अब मुझे अभी हमने सिर्फ एक ही लिखा है, मुझे एक और को लिखना है, एक और नेक्स्ट मल्टीपल लिखना है इक्विवेलेंट. तो अब हम 5/6 को सेम फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से.
5 3s are 15 and 6 3s are 18. So if I am talking about equivalent fractions of 5 by 6, so next two equivalent fractions of 5 by 6 are क्या हो जाएंगे? 10 by 12, 15 by 18. 10 by 12, 15 by 18. All these three are equal. ये क्या होंगे? Equivalent. Equal वर्ड आ रहा है मतलब ये आपस में क्या है? Equal है because they are representing the same part of a whole. The next question. Let us discuss next question, that is question number 3. Why I have not discussed question number 1 here? Reason, क्योंकि जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं different types of fractions, तो I hope कि समझाने के बाद question number 1 जो है वो आप खुद से कर सकते हैं. That's why I am not discussing question number 1 over here. Okay? So the question number 3 is write the following fractions in their lowest term. Lowest term से क्या meaning है? जैसे मैं यहाँ पर question number इसका C part ले रही हूँ. Okay? So it is 26 upon 65. अब मुझे इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है. लोवेस्ट फॉर्म से क्या मीनिंग होगा पहले हम वो समझे. When we are talking about its lowest term, it means न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. मतलब वो किसी सेम टेबल में नहीं आने चाहिए. अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे 26 and 65 बोथ आर डिविजिबल बाय 13, दोनों 13 के टेबल से डिविजिबल हैं, तो हम यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे. सो लेट अस परफॉर्म 26 डिवाइडेड बाय 13 एंड 65 डिवाइडेड बाय 13. आपको ये सोचना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है. व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 26 and 65, they both are having 13 as a common factor. So let us divide numerator and denominator by 13. 13 2s are 26 and this will be divided 5 times. 13 5s are 65. Okay? So now you can see 2 and 5, they are not having any common number. Common factor नहीं है इन दोनों में. 2 1 से divisible है, 5 भी 1 से. इन दोनों में कुछ भी common नहीं रहा. So this will be the lowest term. अगर यहाँ पर भी हमें कुछ कॉमन मिल रहा होता तो हम इसे एक बार फिर डिवाइड करते जिस भी नंबर से ये डिवाइड हो रहे थे. Clear? So this is what question 2 and question 3 is about. Let us now discuss question number 4. Question number 4 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम question number 4 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. So if we are saying question number 4, talking about question number 4, let us see कि सॉल्व कैसे होगा. Convert the following into mixed fractions. आपको क्या करना है? जो fractions दिए हुए हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस में. अगर आप इसकी क्वेश्चंस देख रहे हैं तो नंबर्स आर 9 by 2, 14 by 5, 23 by 4, 72 by 7. तो all these numbers are improper. All these fraction numbers are improper fractions. तो हम यहाँ पर improper fractions को mixed fraction में कन्वर्ट कर रहे हैं. Okay? Let us see how can we do this. Here let us discuss B part of it. Its B part is 14 upon 5. 14 upon 5. Okay? अब 14 upon 5 है, ये improper fraction है. It's an improper fraction and we want to convert it into mixed fraction. Okay? Mixed fraction. They both can be converted into each other. हम improper fraction को mixed fraction में convert कर सकते हैं and mixed fraction को हम improper fraction में भी convert कर सकते हैं. तो अभी हम इसको convert कैसे करेंगे? आप इसे लिखेंगे इस फॉर्म में 14 divided by 5. इसका मीनिंग क्या है? इसको रीड कैसे करते हैं? 14 upon 5 और 14 by 5. So let us now divide 14 by 5. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. It will be divisible 2 times. 5 2s are 10. 14 minus 10 will be 4. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में कैसे लिखना है? बहुत इजी तरीका है. आप यहाँ पे पहले फ्रैक्शन वाली ड्रॉ कर लेंगे लाइन. अब आप ये देखेंगे 5 will come down. 5 क्या आ रहा है? डाउन आ रहा है, तो 5 इधर आ जाएगा. 4 will go up. 4 कहाँ जाएगा? अप, तो 4 यहाँ आ जाएगा. And 2 will come to this
साइड तो 2 विल कम हियर। क्लियर? इस साइकिल से जो एरो मैंने ड्रॉ किए हैं, व्हाई? बिकॉज व्हेन वी कम टू राइट इट वी क्रिएट मिस्टेक्स, वी कमिट मिस्टेक। सो यहाँ पर आपको ये एरो डायग्राम से याद रहेगा कि हाउ टू अरेंज इट, इसको अरेंज कैसे करना है। डिनोमिनेटर ये भी ध्यान रख सकते हैं, डिनोमिनेटर विल बी हियर ओनली, इट्स प्लेस इज नॉट चेंज। और ये एरो डायग्राम से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। Let us now discuss question number 5, which is just opposite of it. Question number 5 क्या है? Question number 5 says write the following mixed fractions as improper fractions. जो हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो हम इसे कैसे करेंगे? लाइक 5 1/8, मैं इसका बी पार्ट ले रही हूँ। 5 1/8 ये देखिए इस फॉर्म में है और हमें इससे इस फॉर्म में जाना है, मतलब इसको इम्प्रॉपर में बदलना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इट्स डिनोमिनेटर लाइक हियर। डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज नहीं होगी। दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 8। ये होल नंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ओके, एंड द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर यहाँ लिखा हुआ है, दिस विल बी एडेड। ये क्या हो जाएगा इसमें? ऐड। 5 8 40 प्लस 1/8। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 41/8। अब आप देख रहे हैं 41/8 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को वी हैव कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। Let us discuss question number 6 now. What is written in question number 6? Question number 6 says fill in the boxes. Boxes में हमें दिया हुआ है, हमें आंसर फिल करने। कैसे करेंगे? Question number 6A. Like here 3/5 equals to 27/. आंसर नहीं दिया होगा एंड इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। ये कैसे होगा? बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी। हाउ? आप यहाँ देख रहे हैं 3 इज कन्वर्टेड इनटू 9। हमें ये पता है ना कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई या सेम नंबर डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 327 में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि चीज जब मल्टीप्लाई होती है तो वो बढ़ती है और डिवाइड होती है तब वो कम हो जाती है। So here when I am multiplying this 3/9, 3 into 9 is converted into 27. 3 9s is 27. So similarly, if I want to convert this, because we know the operation which we are applying over here on numerator, the same will be applied in the denominator. So this will also be multiplied by 9. 5 9s are 45. Easy? बहुत easy है. Let us see one more part of it. Okay, B part of it. अब इसका एक पार्ट और देखते हैं, B part. So you need not to copy down these questions. आप इसके साथ-साथ इसको समझ सकते हैं because I will be providing you PDF of it. Okay. So let us see B part of it. Its B part says 52/39 equals to -3. Now you are observing कि 39 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3 में कन्वर्ट हो रहा है। 39 is greater and 3 is smaller. तो बड़ा नंबर छोटे नंबर में कब कन्वर्ट होता है? जब हम उसमें डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब आपको रिवर्स में सोचना है कि 13 को किससे डिवाइड करें कि हमें 3 मिले। तो इफ यू हैव लर्न टेबल वेरी वेल तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक 13 3s are 39, तो 39 को किससे डिवाइड किया जा रहा है? 13 से। 13 3s are 39, तो सिमिलर ऑपरेशन विल बी अप्लाइड ओवर हियर। 13 4s are 52, so here we will write 4. 13 52 divided by 13 is 4. So that's how these questions are going to be solved. Question number 7 is which among the following are like fractions? Also represent them on the number line. आपको पता है like fractions वो जिसके डिनोमिनेटर सेम है और unlike जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो clearly question number 7 B and C part are like fractions, वो like fractions है। अब इन्हें आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया है, बट हमारा सेकंड जो इसमें टूल है दैट इज टू रिप्रेजेंट देयर ऑन अ नंबर लाइन। उन्हें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 हमें पता चल गया है B पार्ट एंड C पार्ट, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. ओके, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है और हमें ये रिप्रेजेंट करना है. B पार्ट इज 2/7, 11/7 एंड 6/7. अब नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें सीखना है. पहली चीज हम यहाँ पर नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे 0. अब इस नंबर लाइन को आपको रूलर यूज करना है. राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग रूलर विद मी बट यू हैव टू यूज रूलर. ओके, स्केल यूज करना है एंड आप इस लाइन को इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर ही हमें बताता है ना कि इक्वल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 7 इसका डिनोमिनेटर है तो हम 7 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 and this one will be 7. So here I am writing 1. अब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? This will be 1/7. This is 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Now you can see 1 is 7/7. 1 क्या है? 7/7 है. इसको 8/8 भी लिख सकते हैं, 9/9 भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ अब हमें 6/7 तो मिल गया बट हमें यहाँ पे 11/7 को रिप्रेजेंट करना है. 2/7 यहाँ पे है, 6/7 इज हियर बट 11/7 तो ये इम्प्रॉपर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से एक्सीड करेगी. तो आप इसको 1 को आगे और इंक्रीज करेंगे, अगेन इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से और यहाँ पे आपने लिखा 2. अब ये क्या हो जाएगा? 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 and this will be 14/7. 14/7 means 2. 14 divided by 7 is 2. So 11/7 will be, ये हमने अपने आंसर को एनसर्कल कर दिया. तो आपको करना क्या है? पहले 0 से 1 तक लिखेंगे, नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कितने पार्ट्स? जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करके वहां पे क्या करेंगे? 1 बाय जो भी हमारा नंबर है 1 से स्टार्ट करेंगे. 11 है तो 1/11, 2/11 और अगर 7 है तो 1/7, 2/7, 8 है तो 1/8, 2/8, 3/8. इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. Let us discuss question number 8 now. Question number 8 हमें डिस्कस करना है. Compare the following fractions using greater than, lesser than और equals to sign. हमें कंपैरिजन करना है. अब कंपैरिजन हम फ्रैक्शंस में कैसे करेंगे? इट इज वेरी इजी. हम एक तरीका सीखेंगे और वही जो तरीका है, वही जो मेथड है, हम उसके हर पार्ट में अप्लाई करेंगे. जैसे मैम आपको यहाँ पर एक पार्ट बता रही है 1/2 and your bracket 3/7. ठीक है, इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. अब यहाँ पे हम देख करके डायरेक्टली अपना आंसर नहीं बता सकते. वी कैन नॉट आंसर डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग. कैसे करेंगे? आप इन फ्रैक्शंस को इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2, 3/7. ठीक है, न्यूमरेटर का प्लेस चेंज नहीं करोगे, न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी करोगे. 3 इस 7 को इसके पास लाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को इसके पास ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे. आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर का प्लेस चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर वही का वही है. अगर आपने प्लेस चेंज कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है. 3 2 6. 7 और 6 में कौन ग्रेटर है? 7. तो जो साइन हमने यहाँ लगाया है वही का वही साइन यहाँ पर आ जाएगा. यही मेथड है हमें हर पार्ट को सॉल्व करने में. यही एक मेथड है जो हम यूज करने वाले हैं. वी वांट यूज डिफरेंट मेथड. मैंने आपको एक तरीका बता दिया है. अगर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस हैं, तब तो आप न्यूमरेटर डायरेक्टली देखकर बता सकते हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3/4, 1/4. डिनोमिनेटर सेम है तब तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा. पर अगर अनलाइक है तो ऐसी कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कौन सा मतलब है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके आइडेंटिफाई करेंगे कि which fraction is greater. Okay, now let us discuss the last question of this page, that is 33. Question number 9. What we have to do in question number 9, that is
फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। व्हाट वी आर डूइंग बाय अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर, हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन ही कर रहे हैं। ओके, तो हम किस तरह से इसको करेंगे, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 A part. Here let us discuss A part of it. 5 by 8, 3 by 7, 1 by 2 and 2 by 9. सबसे पहले जब हमारे पास दो फ्रैक्शन है तब तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके उनको कंपेयर कर लिया, बट हियर आई एम हैविंग मोर देन 2 फ्रैक्शंस, दो से ज्यादा हैं, तब हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 7, 2 एंड 9, ओके, इनका एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे। सो हियर आई एम राइटिंग 8, 7, 2, 9। तो अब मैं इनका एलसीएम जो है कैलकुलेट करूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर। यही सिखाया है आपको, 2 times 4 8, 7 नहीं आता 2 की टेबल में, एज इट इज 2 1s are 2 9। देखिए इसमें हम तब भी स्टॉप हो जाते हैं जब हमें दिख रहा है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बट मेनी टाइम्स बच्चे जो स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए मैं उनको पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि उनको कई बार कॉमन होता है और वो उसको ओवरलुक कर देते हैं। ओके, सो लेट अस डू हियर 2 2s are 4, 7 1 9। जो डिविजिबल नहीं है वो एज इट इज लिखा जाएगा, 2 2 1s are 2, 7 1 9। नाउ we'll take 3 1 7 1 3 3s are 9। Now 3 again, 1 7 1 1। Now again 7 1 7 the 7 1 1। So now LCM will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 into 3, sorry 7। So here 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 multiplied by 3 will be 72। 24, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 into 3 72, 72 into 7 53, 539, 539। अब हमें क्या करना है, हमको इन सभी जो हमारे फ्रैक्शंस हैं इन सबके डिनोमिनेटर को जो हमारा एलसीएम हमें मिला है यहाँ पर उसमें कन्वर्ट कर देना है। जैसे सबका डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम मिला है वो है 539, तो अब हम क्या करेंगे, सभी को 539 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 5 8 5 by 8, 8 को किस में कन्वर्ट करना है, 539 में कन्वर्ट करना है। तो आप 539 को 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे कितने टाइम्स डिविजिबल है। यहाँ पे 8 7s are 56, so 8 6s are 48 हम ले रहे हैं, then 539, 6 are 48, 7s are 56, 8 inside is 8 8 just 8 7s are 56, indivisible। हमने कहीं मिस्टेक करी, 2 4s are 2 2s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are 1 2 1s are, then 3 3s are 3 1s are 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 multiplied by 3 3 4s are 12 2 2s are 6 7 72 72 multiplied by 7 7 2s are 14 7 7s are 49 50। सॉरी, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हमने है वहां पे मिस्टेक कर दी, दिस इज 504। तो अब हमें 504 में सबको कन्वर्ट करना है, सबका जो डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर को 504 में कन्वर्ट करना है। तो हम 504 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विल स्टार्ट डिवाइडिंग हियर। ओके, 8 7s are 56, 8 6s are 48। So here I am writing 8 6s are 48, 2 and then 4, 8 3s are 24। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, 63 टाइम्स। तो 63 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 504, ओके, एंड दिस इज 5 3s are 15, 5 6s are 30, 315। ओके, अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन उठाएंगे, दैट इज 3 by 7। इसको
4 7 2 जा 14। ठीक है, तो अब हम जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। तो डिनोमिनेटर में तो हमें मिलेगा 504 और न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है 216। कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1/2 को। 1/2 को आपके लिए हमें 2 से डिवाइड करके देखना होगा। 504 हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, here 2 5s are 10 and then 4 2 2s are 4, तो 252 हमें मिल रहा है। तो 252/252, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है 252 और डिनोमिनेटर में मिल रहा है 504। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस 2/9। 2/9 को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 504 को 9 से डिवाइड करके चेक करना होगा कितने टाइम्स डिविजिबल है। 504 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 9 5 45 and then here 5 9 6 54. Okay, so 56/56। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में 504 है, 56 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 112। तो अब आप देख रहे हैं जो हमारे चारों फ्रैक्शंस थे जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग थे, अब सबके डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, सेम हो चुके हैं। नाउ दे ऑल हैव कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस। पहले वो कैसे थे, अनलाइक फ्रैक्शंस थे, अब वो कैसे कन्वर्ट हो चुके हैं, लाइक में। सो नाउ लेट अस कंपेयर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे छोटा ये वाला है 112/504। इट मींस ये 2/9 सबसे छोटा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। अब इसके बाद ये हमने लिख लिया, नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो कौन है, 216। तो 216 में 3/7, तो इससे बड़ा कौन है, 3/7। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है इनमें दो में कौन है यहाँ पे नेक्स्ट जो बड़ा आएगा, ओके, दैट इज 1/2 बिकॉज 252 छोटा है इससे। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन विल बी 5/8। So that's how you are going to solve all the parts of this question number 9 over here. इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व होंगे और ये आपको दिखने में might be it seems difficult to you, but when you will start solving on your own, जब आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे you will find them very interesting. आपको बहुत मजा भी आएगा सॉल्व करने में. So do try these questions, okay? इसके जो B और C पार्ट है आप सॉल्व करेंगे. You're gonna solve these questions in your maths notebook. If you feel any kind of problem, you're gonna ask me. I will help you. Okay? But do solve these questions.